Good morning, students. Welcome to our BST class of 2nd July 2020. Before starting off staffing process, I would like to tell that we have entered in staffing chapter after summer vacation, and we have completed meaning of staffing and HRM. Okay. So today's topic is staffing process. प्रोसेस का मतलब होता है कि स्टाफिंग में क्या पहला स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप क्या होता है, वो प्रोसेस जो है इसका स्टेप बाय स्टेप स्टडी स्टाफिंग में क्या क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। ये हर चीज़ का जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सबका एक प्रोसेस है। तो ये ऑल प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। सो आप लोग इसको बड़ा ध्यान से देखिए। एज यू आर नाउ अवेयर, द प्राइम कंसर्न ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज द टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट। यानी कि मैन पावर रिक्वायरमेंट जो भी हो, वो बहुत दिनों तक जॉब को वैकेंट में नहीं रखना है, खाली नहीं रखना है, उसको हमने पूरा कंप्लीट करना है। दीज रिक्वायरमेंट्स में अराइज इन केस ऑफ स्टार्टिंग अ new business or expanding the existing one, or they may arise as a matter of need for replacing those who quit, retire, or transferred or promoted from or are fired from the job। यानी कि अगर किसी भी वजह से अगर पद खाली हो गया है तो उसको हम लोग भरने के लिए इसका प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। In any case, need for right person for the right job hardly needs an overemphasis, but just as the phrase water water everywhere and not to drop a drink amplifies the fact that despite 2/3 of the earth being watered, drinkable water is a scarce commodity. So may also be said of finding the right person for the right job. As such, it is important to appreciate staffing as a process that starts from understanding the manpower requirements. Understanding the manpower requirements within the organization and identify the potential sources from where it can be met, either from within the organization or from outside. And given that the right person is scarce, there is need to market the job and the organization to the people. Even in situation where a single job vacancy might attract a few hundreds of the applicants, there is a challenge of selecting the most appropriate one. Freshly appointed persons might need orientation or training to familiarize them with way the things are done in an organization, and in case they have been selected only on the basis of academic qualifications and aptitude for learning, they might need training in specific skills as well. For example, if one is selected by a business process outsourcing unit by virtue of being extrovert and well versed in English speaking, one needs to be trained in the relevant process, telephone conversation etiquettes, as well as diction adaptation before actual placement. The employee's experiences during orientation and placement form his or her first impression of the organization. Even whilst on the job, the employees need training for upgradation of knowledge and skill for preparing for higher responsibilities. So staff training and development is another important aspect of the staffing process. What follows is a brief description of the above stages. यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें एक फ्रेज आया था, वाटर वाटर एवरीवेयर,
but not a single drop of water to drink, because there is a scarcity of water, fresh water. इसका अर्थ ये हुआ कि भाई इस सेंस में यहाँ पे देखिए कि स्टाफिंग जो है, इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, बट फाइंडिंग अ राइट पर्सन फॉर ए राइट जॉब, यानी एक आदमी उसमें से जो कि उस पर्सन को उस पद के लिए राइट हो, यानी कि उचित हो, योग्य हो, ये वास्तव में एक स्कैरसिटी वाला काम है। इवन इफ, बाद में इसको देखिए लिखा हुआ है, इवन इफ कि अगर किसी का ट्रांसफ़र होता है या उसको प्रमोट किया जाता है, फिर भी जिस पद पर वो काम कर रहा है उसके लिए उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन सभी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आप एक बात समझिए कि आप में योग्यता है और काम जब आप करते हैं तो काम का जो अनुभव है, दोनों चीज़ में अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। आप बहुत ही योग्य हों, आपको हर चीज़ आता हो, लेकिन उस काम को जब तक आप करेंगे नहीं तब तक उस काम का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। और जब आदमी धीरे धीरे उस काम को करता है तब उसके साथ उसका एक्सपीरियंस जुड़ता जाता है और वो काम उस आदमी के लिए भी इजी हो जाता है और वो जिस सिनेरियो में काम कर रहा है उसके साथ एडेप्ट भी करता है। ये भी इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि एडेप्टेशन भी होना ज़रूरी है, उस काम का अनुकूल हो जाता है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि जब वो आउटसाइडर्स को डील करता है तो आउटसाइडर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए अब तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी कमी है, तो उसमें एक्सपीरियंस जो लोगों को देखा जाता है, जिसके साथ जो है क्वालिफ़िकेशन होने के साथ साथ उस काम को करने का एक्सपीरियंस भी हो। तो पहले क्या होता था कि पहले एक्सपीरियंस नहीं होता था, एक्सपीरियंस अभी होने लगा, बिकॉज वाटर इज़ एवरीवेयर बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप वाटर टू ड्रिंक। जब हम लोग सी में जाएंगे, समंदर में जाएंगे, तो हमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, परंतु अगर एक घूंट उसका पीना चाहें तो आप पी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पीने के योग्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो है, अब इसके लिए जो इसमें इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था, इसके लिए हमें सबसे पहले राइट मैन पावर को फाइंड करना पड़ेगा कि मैन पावर का रिक्वायरमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना है और किस प्रकार के मैन पावर का रिक्वायरमेंट्स है। यही हमारा पहला स्टेप है। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। यू आर अवेयर दैट while designing the organizational structure, we undertake an analysis of the decisions and the decision making levels, activities as well as relationship among them, with a view to evolving the horizontal and vertical dimensions of the job structure. Thus various job positions are created. Clearly, performance on each job necessitates the appointment of a person with a specific set of educational qualification, skills, prior experience and so on. Thus, understanding manpower requirement is not merely a matter of knowing how many persons we need, but also what type। देखिए, केवल इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स वी रिक्वायर, we also requirable to know that what kind of person, what type of person you want, given that we need to encourage women, persons from backward communities and persons with special abilities such as physically challenged, visually and hearing impaired to assume responsible positions in our organization. There is a need to understand, and if the need be, to redefine manpower requirements accordingly. Can you think why should we encourage such a diversity in workforce? Operationally, understanding the manpower requirements would necessitate workload analysis on the hand of workforce analysis on the other. Workload analysis would enable an assessment of the number and types of human resources। देखिए, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं इसको खुद से ही ऐसे ही समझा दे रहा हूँ कि वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड यानी कि मतलब हमें वर्क यानी कितना काम करके मैनेजर को देना है या उस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, दैट इज़ वर्कलोड कितना है, और उसके साथ वर्कफोर्स कितना। और इसमें देखिए, मैं पढ़ रहा था तो एक पॉइंट ये भी आया, फिजिकली चैलेंज है, वीमेन है,
पर्सन्स फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज़, उसको भी हमें इनकरेज करना है। किस पद के लिए कि कौन सा आदमी सुयोग्य होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि आपको फिजिकली हैंडीकैप को भी रखना है, तो आप किस पद के लिए फिजिकली हैंडीकैप आदमी को रखिएगा। अब हर पद के लिए हम फिजिकली हैंडीकैप को नहीं रख सकते हैं, बट बैंक में अगर देखा जाए तो रिसेप्शन के लिए हम लोग आप जो है जिसका पैर या हाथ खराब है, फिजिकली चैलेंज है, उसको हम रख सकते हैं। आप रेलवे में अधिकतर जाइएगा तो रेलवे में जो इंक्वायरी पे आपको मिलेगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपको फिजिकली हैंडीकैप भी आपको मिल सकता है, क्योंकि उस काम के लिए बोलना ही ज़रूरी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स में हमारा जो नेसेसिटेट्स है, जो जितने आदमी की आवश्यकता है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस कम्युनिटी से आ रहा है, मैन है या वीमेन है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1, एस्टिमेटिंग मैन पावर। और इसमें बहुत सारा चीज़ आता है। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि जब भी आप NCERT बुक पढ़िए तो आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। आप दिन भर में एक ही पेज पढ़िए, ज़्यादा नहीं, ओनली 1 पेज, बट उसको ध्यान से उसका वर्ड मीनिंग बहुत आसान है। अभी देखिए आपको डिक्शनरी भी खोलने की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल में गूगल में ही आप हर वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं, इन हिंदी आप देख सकते हैं। ओके, सेकेंड नंबर इज recruitment. Recruitment may be defined as a process of searching of prospective employees and simulating them to apply for jobs in the organization. बस इतना ही होता है रिक्रूटमेंट का मतलब। यानी ऑर्गेनाइजेशन में उन योग्यता की तलाश करना और उन्हें इनकरेज करना कि आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, आप इस काम के लिए योग्य हैं और आप ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप आकर फॉर्म भरिए। यही होता है रिक्रूटमेंट। ओके पूरा आप देखिएगा रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इसको सेलेक्ट करके हमें नौकरी पर लगना है। द इन्फॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक वर्ड आया। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब कि इस पद पर आपको क्या क्या करना होगा, फिजिकली आपको क्या क्या करना होगा। फॉर मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं स्कूल में आता हूँ, आप लोग जब स्कूल में आते हैं तो आपका क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन। आते हैं, आप बैग रखते हैं और आपका काम है कि मॉर्निंग असेंबली में चले जाना। फिर हमारा काम है कि हम आना है ऑफिस में, साइन करने के बाद अटेंडेंस रजिस्टर लेके ग्राउंड पे जाना और सबका अटेंडेंस लेना। उसके बाद हमारा जो है असेंबली होता है, वहाँ पे प्रेयर होता है, उसके बाद हम लोग क्लास में आते हैं और फिर सारी गतिविधियों को आप जानते हैं। तो इसी का नाम जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको करना क्या है ना। द एडवर्टीजमेंट में बी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री गेट, ऑफिस गेट और एल्स में बी गेट पब्लिश इन प्रिंट मीडिया। तो इस तरह से आपका हमें मीडिया में प्रसार करना है ताकि लोग इसके बारे में जानें और उत्सुक होकर इसको भरने का प्रयास करें और भरें। इसी का नाम होता है रिक्रूटमेंट। तो नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 2, रिक्रूटमेंट। अब देखिए रिक्रूटमेंट वो लोग फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरना ही केवल काफ़ी नहीं है, उसका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन में हमें कैंडिडेट को छांटना है, लेने के बजाय छांटना है। बिकॉज इंडिया में क्या है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो होता है वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमें छांटने का काम करना पड़ता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन के लिए तरह तरह का सिलेक्शन टेस्ट होता है, उस सिलेक्शन टेस्ट को लेकर हम लोग सिलेक्शन करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा, पढ़िएगा। इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमॉन्ग द अवेलेबल, यानी कि सबसे अच्छा। इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सेलेक्टेड एंड कन्वेज देम टू द सीरियसनेस विथ विच द थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं अभी देख रहा था, बहुत हंसी आती है मुझे जब मैं बिहार में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग आपस में बात करते रहते हैं कि इतना रुपया दे दो हो जाएगा, इतना रुपया दे दो हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, आपको वहाँ पे जाना है, ऐसे करना। तो यहाँ पर जो है जस्ट इसका उल्टा हुआ है। इसमें लगता है कि आप अगर अवेलेबल जितने भी लोग हैं रिक्रूटमेंट पे, जितने भी लोग आए हैं, उसमें से आप बेस्ट को लीजिएगा, तो जिस आदमी को आप लीजिएगा तो उसका ऑटोमेटिक जो मोरल बूस्ट हो जाएगा, उसका प्रेस्टीज और एस्टीम बढ़ जाएगा और वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होकर काम करेगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप देखिए अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, और ख़ास करके सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में अधिकतर आप देखिए कि परीक्षाएँ होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा आ जाता है और कोर्ट के में चला जाता है केस। तो हंसी आती है जब मैं इसको देखता हूँ। चलिए, दिस इज पॉइंट नंबर 3। उसके बाद से इसी पेज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हमने तो एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, अब उसको हम कहाँ पे रखें, कहाँ उसको प्लेसमेंट दें, यानी कि किस जगह पर उसे नौकरी दी जाए। तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है प्लेसमेंट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिसके 2-3 ब्रांच हैं, कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं चेन्नई में, कहीं आपको बैंगलोर में है, तो इस तरह आपको प्लेसमेंट देने में जो असुविधा होती है, और प्लेसमेंट किस तरह से दिया जाता है, इसी का नाम है प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जैसे ही आदमी काम करने जाता है उसको थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि आपका काम किस तरह का है, किस नेचर का है, किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ेगा और इसमें क्या क्या कठिनाई आएंगी और उसको किस तरह से आप हैंडल करिएगा। इसी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है, शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 4। नाउ पॉइंट नंबर 5 में हम लोग आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, इट इज़ इनडिस्पेंसेबल पार्ट, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोई भी ऑर्गेनाइज, जब भी हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैं आपको अपना घर का एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम लोग धीरे धीरे करके एक तरह से ट्रेनिंग ही देते हैं कि बेटा ऐसे करो, बेटा दरवाज़ा खोलो, बेटा दरवाज़ा इस तरह से मत खोलो, दरवाज़ा के पास यहाँ पे हाथ मत रखो, तुम्हारा हाथ चपा सकता है, प्रेशराइज हो सकता है, कपड़े पहनो अच्छे तरह से, खाना अच्छी तरह से खाओ, आग से मत खेलो, बाहर मत झाँको, रोड पर ठीक से चलो। ये उसका ट्रेनिंग हो रहा है, छोटा छोटा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग के साथ ही जब आप ट्रेनिंग दीजिएगा एक पॉजिटिव वे में, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक साथ है। जैसे हम ट्रेनिंग हम लोग क्यों करते हैं, उसका डेवलपमेंट के लिए। अब डेवलपमेंट जो होता है बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। अब ये ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्लिगेशन है कि वो जो है अपने जो है स्टाफ का डेवलपमेंट करे, हर तरह का डेवलपमेंट, नॉट ओनली कि उसका सैलरी बढ़ा दिए, नो, उसका पोस्ट में, उसका एरिया ऑफ नॉलेज में डेवलपमेंट करे। दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6 जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट और वो काम किस तरह से कर रहा है, उसको ठीक से कर पा रहा है या नहीं, इसका पूरा एक रिपोर्ट बनता है, मैनेजर बनाते हैं, उसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, पहले इसका कुछ और नाम था, अभी नाम हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब ये होता है कि उसका प्रदर्शन में क्या निखार आया है, क्या बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनता है और वो हर साल मैनेजर उसका बनाता है। उसको देखकर ही उसको हम उसका सैलरी बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो काम है। नाउ पॉइंट नंबर 7, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद पॉइंट नंबर 7 में आइए, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। एंड आफ्टर दिस उसको हम लोग प्रमोट करते हैं और फिर उसको किस तरह का करियर उस हम देते हैं, वो आप किस तरह का और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस तरह से प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो दीज आर द 7 स्टेप्स, 8 वे, सॉरी। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है, कंपनसेशन का मतलब होता है कि उससे हम कितना सैलरी दे रहे हैं, सीधा बात, उसको फाइनेंशियली कितना हम दे रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। और हर तरह का आप, जैसे कि उसको मान लीजिए हम ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, चाहे हम कहीं पे उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज रहे हैं, तो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस कितना होगा, उसका डियरनेस अलाउंस क्या होगा, उसका होटल अकोमोडेशन का कितना होगा, तो उसको जो कंपनसेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपनसेशन। तो ये पॉइंट नंबर 8 था। तो दीज आर 8 पॉइंट, और यू कैन से 8 स्टेप्स दैट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो इस तरह से आपका ये 8 का रहा एक्सप्लेनेशन, और आप लोग जो है इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।